نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ سے مشرف با اسلام ہوا اور آپ سے تعلیم یافتہ ہے، ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی اگر بندے کا عقیدہ خراب ہو گیا تو سمجھو کہ اس کے ایمان کو کیڑا لگ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی آل طیبات، جو آپ کی اولاد اور آپ کی آل ہے، اگر کسی مومن کے عقیدے میں نبی کریم کی آل کے بارے میں خرابی پیدا ہو گئی تو سمجھا وہ بندہ ڈوب گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کہ اس کے ایمان کو بھی خسارہ ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، روایات کے اختلاف کے مطابق 9 ہیں یا 11 ہیں، جتنی بھی ہیں، توجہ میری طرف۔ تو جو بندہ ایماندار نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ بات کرے گا، عقیدے کو خراب کرے گا، تو سمجھو اس بندے کا ایمان بھی نقصان میں پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا ان 3 افراد کے ساتھ صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور نبی کریم علیہ السلام کی آل طیبات، ان تینوں کے ساتھ صحیح سچے معنی میں محبت کرنے کا نام ایمان ہے، اور ان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے کا نام کفر ہے۔ لہذا جو بندہ مومن دنیا میں اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کامل رکھے، نبی کی ازواج کے ساتھ محبت کامل رکھے، نبی کی آل طیبات کے ساتھ محبت کامل رکھے، تب اس کا ایمان سلامت ہوگا۔ لہذا احادیث طیبہ سے میں مختصر وقت کے اندر کچھ ان تینوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا، لیکن آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں کچھ بیان کروں گا، اگر نہیں تو پھر نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والے، اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو، گندگی کو، گناہ کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، تمہیں خوب پاک کرے، تمہیں صاف کرے۔ اب نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اسی بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور دل میں بٹھانا، شاید کہ تم نے پہلے کبھی نہ سنی ہو کہ اہل بیت کون ہیں جن کی پاکی کا بیان قرآن کرتا ہے۔ اللہ نے ان کے پاکی کا بیان قرآن میں فرمایا کہ اے نبی کے گھر والے اہل بیت، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف کرے، اور تم سے گندگی کو دور کرے، گناہ کو دور کرے، رجس کو دور کرے۔ یہ اہل بیت کون ہیں؟ سب سے پہلے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، مجھے انہوں نے حکم کیا کہ تم بیان کرو، ورنہ مجھے اتنا شوق نہیں تھا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے اور ان کا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے مجھے جیسے کام طالب علم کو موقع دیا تم لوگوں کے سامنے۔ بہرحال تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے، اہل البیت اے نساؤہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی کے گھر والیاں، اے نبی کے ازواج مطہرات، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ آیت کا اولی مصداق ہیں۔ نبی کریم کی گھر والیاں اور نبی کی ازواج مطہرات اس آیت کا اولی مصداق ہیں۔ نبی پاک کی گھر والیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی پاکی کا بیان قرآن نے کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی گھر والی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو ایک جانب بٹھایا اپنی طرف اور فاطمہ کو دوسری جانب بٹھایا، پھر حسنین کریمین حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما ان کو بلایا، ان کو اپنی گود میں بٹھایا، پھر اوپر اس طرح چادر کی تمام افراد کے اوپر، اور پھر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
अज़हिब अन्हुम रिज्ज़ व तहिरहुम तत्हीरा औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। फिर नबी करीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे गंदगी को दूर कर और इन्हें इस तरह पाक कर जिस तरह पाक करने का हक होता है। जब हज़रत उम्मे सलमा ने ये देखा कि नबी करीम अलैहि सलाम हज़रत अली को, फातिमा को, हसनैन करीमैन को बिछाकर ऊपर चादर बिछाकर ये दुआ मांगते हैं, तो उम्मे सलमा ने अर्ज़ की, या दूसरी रिवायत में है कि उम्मे सलमा ने चादर उठाई और सर अंदर दाखिल किया ताकि मैं भी इस दुआ में दाखिल हो जाऊं कि ये बड़ी आला दुआ है अल्लाह की बारगाह में नबी करीम की। नबी करीम अलैहि सलाम ने चादर को खींचा और फरमाया, इन्ना के अला खैर, अय उम्मे सलमा तू तो पहले से खैर के ऊपर है, तेरे बारे में तो आयत नाज़िल हो चुकी है, तू तो मेरी अहले बैत में पहले दाखिल है। इन अफराद को मैं अपने फेल से दाखिल करता हूँ ताकि ये भी इस कार खैर से महरूम न हो जाएं। इस नुक्ते को समझो ज़रा। कुरान की आयत जो नाज़िल हुई, अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, वो नबी करीम की अज़वाज मुतहरात के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई, क्योंकि इस आयत से पहले भी अज़वाज मुतहरात का जिक्र है, इसके बाद भी अज़वाज मुतहरात का जिक्र है। जब नबी करीम अलैहि सलाम ने ये देखा कि ये इतनी पाकीज़ा आयत और मेरी अहले बैत की पाकी का बयान है, फिर नबी करीम अलैहि सलाम ने अपने फेल के साथ इन अशखास को जमा किया और इनके लिए दुआ की, तो मालूम हो अहले बैत के दो अफराद हो गए, एक नबी पाक की घरवालियाँ और दूसरे ये पंचतन पाक के अफराद, ये दोनों नबी करीम अलैहि सलाम के अहले बैत हैं। लिहाजा जब भी कोई आलिम दीन मुहर्रम के मौके पर, 10वीं मुहर्रम पर इससे आगे पीछे बयान करे तो अहले बैत के दोनों अफराद को जिक्र करे। नहीं समझ आई बात की? सिर्फ एक को जिक्र कर देना और अज़वाज मुतहरात को छोड़ देना, ये अज़वाज मुतहरात के साथ जुल्म है, उनके साथ बदअकीदगी है। लिहाजा जो सिर्फ और सिर्फ पंचतन पाक के अफराद को अहले बैत में जिक्र करता है और उनकी शान को बयान करता है और अज़वाज मुतहरात का जिक्र बिल्कुल नहीं करता, सरे से उनको छोड़ देता है, मालूम हुआ कि इसके अकीदे में खराबी है, इसका ईमान बर्बाद हो रहा है। लिहाजा अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफ़िका अकीदा है कि नबी करीम अलैहि सलाम के अहले बैत ये दो किस्म के अफराद हैं, एक नबी करीम अलैहि सलाम की अज़वाज मुतहरात, ये भी नबी पाक की घरवालियाँ आपके अहले बैत हैं, इनकी पाकी का बयान भी कुरान में आ गया और इनसे गंदगी को अल्लाह ने दूर फरमाया, और ये जो पंचतन पाक के अफराद हैं इनकी पाकी का बयान भी कुरान में आ गया। तो मालूम हुआ वे दोनों के साथ मोहब्बत रखना ज़रूरी है। जो पंचतन पाक के अफराद हैं इसकी शान अहादीस तर्जुमा में बड़ी ज़्यादा बयान की गई है। एक हदीस मैं पेश करूँगा, उसके बाद असहाब किराम पर थोड़ी गुफ्तगू फिर ख़त्म करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस तर्जुमा है, अल्लामा इब्न हजर हैतमी मक्की ने अल-सवाइक मुरक़ा के अंदर नकल किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामह या फिल जन्नह। दो रिवायतें हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स मेरे साथ मोहब्बत करता है वह हाज़ैन और इन हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत करता है और इनके बाप हज़रत अली मुर्तज़ा के साथ मोहब्बत करता है और इनकी अम्मा जान फातिमा ज़हरा के साथ मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ एक दर्जे में होगा। ये हसनैन करीमैन और आपकी अम्मा जान फातिमा ज़हरा और आपके अब्बा जान अली मुर्तज़ा, इन चार शख्सों के बारे में नबी करीम ने फरमाया, जो भी मेरे साथ मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत का जिक्र पहले किया। मैं इधर एक नुक्ता बयान करता हूँ, अगर मुफ्ती साहब बुरा ना फरमाए न मनाए तो हैं। जो शख्स बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अहले बैत के गुलाम हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है अहले बैत के साथ और बड़ा वावेला करते हैं अहले बैत की मोहब्बत का, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनको मोहब्बत नहीं है, नबी करीम की मोहब्बत से खाली हैं। क्यों? इसलिए कि नबी करीम ने फरमाया, जो भी मेरे असहाब के साथ मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत की वजह से उनके साथ मोहब्बत करेगा। अगर मेरे साथ मोहब्बत होगी तो मेरे असहाब से मोहब्बत करता है, अगर मेरी मोहब्बत नहीं है तो मेरे असहाब के साथ मोहब्बत नहीं करता। जो लोग वावेला करते हैं, सर पीटते हैं, रोडों पर निकल आते हैं और कहते हैं हमें अहले बैत के साथ बड़ी मोहब्बत है, मालूम हुआ मोहब्बत में झूठे हैं कि नबी करीम के साथ मोहब्बत नहीं करते।
नबी करीम ने सबसे पहले फरमाया मन अहब्बनी, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है। फिर फरमाया हाज़ैन, इन दो हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत करता है। वह अबाहुमा, इनके बाप के साथ करता है। वह उम्महुमा, इनकी माँ के साथ करता है। मालूम हुआ कि जन्नत में हुजूर के साथ अगर जाना है तो नबी करीम की मोहब्बत पहले शर्त है, ये पहले करनी होगी। फिर नबी करीम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि नबी करीम के असहाब के साथ भी मोहब्बत की जाए, नबी करीम के अज़वाज के साथ भी मोहब्बत की जाए और नबी करीम की आल तय्यबात के साथ भी मोहब्बत की जाए, तब मोहब्बत आपकी सच्ची होगी। आखिर में थोड़ा सा मैं सहाबा किराम के बारे में, टाइम मुख्तसर है, असहाबे किराम के बारे में ये इब्न हजर हैतमी लिखते हैं, इल्म, ऐ मुखातब, ऐ सुनने वाले, ऐ मुसलमान भाई, जरा तवज्जो के साथ सुन, इस बात को दिल में बिठा और पकड़ ले। क्या है? अन्नल्लज़ी अजमाने अहलुस सुन्नत व जमाअह, अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा ने इत्तेफाक किया इस बात पर और इजमा किया इस बात पर, अन्नहु यजिबु अला कुल्li मुस्लिमिन तज़कियत जमी सहाबत बिइस्बात अदालत लहुम, जमी असहाब किराम नबी करीम अलैहिस्सलाम के, उनके बारे में हर मुसलमान पर वाजिब है कि नबी करीम के असहाब के बारे में दिल में पाकी रखे, दिल में बुग़्ज़ न रखे, दुश्मनी न रखे नबी के असहाब के साथ। और फरमाया वल कफ़ अनित्तान फ़ीहिम, अपनी ज़बान को नबी करीम के असहाब से तान और गाली गलौज देने में अपनी ज़बान को रोके कि स्टेज पर खड़े होकर अवाम के सामने, लोगों के सामने नबी करीम के असहाब की बुराई बयान न करे, नबी करीम के खुलफाए राशिदीन की बुराई बयान न करे, यहाँ तक कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बुराई भी बयान न करे। अगर करेगा तो उसका ईमान खसारे में पड़ जाएगा, उसके ईमान को नुकसान होगा। वस्सना अलैहिम, फरमाया कि उनकी तारीफ करे, उनके तज़किरे करे, लोगों के सामने उनकी शान बयान करे। क्यों? आगे लिखते हैं कि इस बात को निहायती तवज्जो के साथ सुनो, अकीदे की बात है। फरमाते हैं कि एक आलिम दीन अपने वक्त का इमाम गुजरा है, अबू ज़ुर्रा उसका नाम है, राजी, वो लिखता है और वो फरमाता है इज़ार आयत रजुला यंतकुसु अहदम मिन असहाबि रसूलिल्लाह अलैहि सलाम, जब तू किसी शख्स को देखे, किसी बदबख्त को देखे कि नबी करीम के असहाब में से किसी सहाबी की तौहीन करता है, नबी के असहाब में से किसी का बुरा नाम लेता है, उसके दिल में बुग़्ज़ है नबी करीम के असहाब का, फ़ालम, तो फिर तू समझ जा अन्नहु ज़िंदीकुन, ये बंदा ज़िंदीक है, ये बंदा बेईमान है, इसका ईमान नहीं है, इसका अकीदा ख़राब है जो नबी करीम के असहाब के बारे में बुरी ज़बान इस्तेमाल करता है। क्यों? वज़ालिका अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुन वल कुरान हक़्क़ुन व मा जा बिही हक़्क़ुन व इन्नमा अद्दा इलैना ज़ालिका कुल्लहु अस्सहाबतु फमन जरहहुम इन्नमा अरादा इब्ताल अल किताब व सुन्नह फयकूनुल जरह बिही। उन्होंने फरमाया अल्लाह का रसूल हक है, अल्लाह के रसूल की हदीस हक हैं, कुरान भी हक है और कुरान के अंदर जो तालीमात हैं वो भी हक हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद इस ज़माने तक जो कुरान और सुन्नत का सबक जारी है, ये हम तक किसने पहुँचाया है? नबी के असहाब ने पहुँचाया है। समझ नहीं आ रही तुम्हें जी? खामोशी ज़्यादा है ना? ज़रा नारा लगो, पता नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। तो मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब पर जो बंदा तान करता है, इमाम अबू ज़ुर्रा फरमाता है हमारे तक अल्लाह का कुरान, नबी की हदीस ये अगर पहुंची है तो नबी करीम के असहाब के वसीले से पहुंची है। अगर असहाब न होते तो नबी पाक के बाद कौन पहुंचाता? सिर्फ और सिर्फ नबी करीम के असहाब के वसीले से, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में नबी करीम के असहाब चले गए और उन्होंने अल्लाह का कुरान और नबी की हदीस का दर्स दिया और लोग मुसलमानों तक इसका दर्स पहुंचाया। तो मालूम हुआ जो बंदा नबी करीम के असहाब पर तानो तशनी करता है,
उन पर बुरा सोचता है, अकीदा खराब रखता है, तो मालूम हुआ वो कुरान को हक नहीं मानता, नबी की सुन्नत को हक नहीं मानता। क्योंकि नबी की सुन्नत और कुरान का वसीला जो हम तक पहुँचे हैं असहाब के वसीले से, जो असहाब पर तान करता है तो मालूम हुआ कुरान पर तान करता है, नबी की सुन्नत पर तान करता है। और जो बंदा नबी की सुन्नत पर तान करे, अल्लाह के कुरान पर तान करे, ये बंदा जिंदीक है, मुसलमान नहीं हो सकता। मालूम हुआ नबी करीम के असहाब की तौहीन करना अल्लाह के कुरान की तौहीन है, नबी करीम के असहाब की तौहीन करना नबी की सुन्नत की तौहीन है। और जो बंदा दुनिया में नबी करीम की सुन्नत की तौहीन करे, नबी करीम के कुरान की तौहीन करे, ये बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, पक्का काफिर है। तो लिहाजा एक मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि एक मुसलमान अपने ईमान की सलामती के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए नबी करीम के असहाब का मामला हो तब भी अपने दिल को और ज़बान को पाक रखे। जब नबी करीम के अज़वाज मोहतारात का मामला हो फिर भी अपनी दिल और ज़बान को पाक रखे। चाहे नबी करीम के आले तय्यबात का मामला हो फिर भी अपने दिल को और ज़बान को पाक रखे। आले सुन्नत व जमात ने हमें यही सिखाया है उलमा ने कि हम सुन्नी हैं, जिसको खुली ज़बान में बरेलवी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमें नाज़ है इस बात पर कि हम बरेलवी हैं। हमारा अकीदा ये है कि बाद अज़ खुदा तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो भी अल्लाह ने शान अता फरमाई है अपने हबीब को अता फरमाई है। और आगे फरमाया नहीं है उन्होंने फरमाया कि अगर फ़र्क मरातब न कुनी ज़िंदगी, अगर मर्तबे का फ़र्क नहीं करेगा तो ज़िंदीक हो जाएगा। माना क्या है, नबी करीम को उसकी शान के मुताबिक मानना होगा, असहाब किराम को उनकी शान के मुताबिक मानना होगा, अज़वाज मुताहरात को उनकी शान के मुताबिक मानना होगा, आले तय्यबात को उनकी शान के मुताबिक मानना होगा, औलिया किराम को उनकी शान के मुताबिक मानना होगा, तब तेरा ईमान सलामत रहेगा। इस महफिल में और इस जलसे में मैं हाथ उठाकर दावा करता हूँ और ये कहता हूँ खुदा की बारगाह में कि ऐ अल्लाह करीम, जो भी तेरा प्यारा है हमारे सर का ताज है इंशाअल्लाह। हम उसके बारे में अकीदा सही रखेंगे, उसके बारे में गंदी ज़बान नहीं इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा खात्मा खैर पर हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस आज की महफिल को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को आले सुन्नत व जमात के अक़ीदा पर रहने की तौफीक अता फरमाए।